Assalamu alaikum and good day to you people. Today I'm going to teach you about parts of speech. अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम एंड आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसको उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहा जाता है. व्हाट इज़ पार्ट? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश? देयर आर 9 part of speech in English grammar. Number 1, noun, pronoun, verb, adjective, articles, adverb, preposition, conjunction, interjunction. First of all, we will talk about them step by step, and in other video we will talk about their types like noun types, pronoun types, verb types, adjective types, article types, adverb types, preposition types, conjunction types, and also interjunction types. So first of all, we will talk about only basic parts of speech. First of all, we have noun. A noun is the name of person, place, or thing, or we can say that naming things are called noun. For example, Rashid, Ali, Zia, Najma, Nadia, and other persons. They are person name. टेबल, बुक, पेन, पेंसिल, डेस्क, थिंग्स नेम, ये चीज़ों के नाम है. डॉग, हॉर्स, कैट, काउ, fish, they are animals name. And Lahore, Bano, Peshawar, Tank, they are tongue, they are the name of places. So we will make some sentence in noun. Rashid is my brother. Here Rashid is noun. And Peshawar is a big city. Here Peshawar is a noun. Table is made up of food. Here table is noun. And wood is also noun. City here is also noun. Brother is also noun. Dog is a faithful animal. Animal is also noun and dog is also noun. Book contains 200 pages. Book is also noun and pages is also noun. So we should go to other topic and we will talk about pronoun. There are kinds of noun. In other video we will talk about kinds of noun. Here we will talk about pronoun. What is pronoun? A word that is used in a place of noun is called pronoun. वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि हम जैसे कि मैं बोलता हूँ तलहा, मैं अपने आप को कहता हूँ तलहा, तो मैं अपने आप की जगह आई लिख सकता हूँ. और हम सब लिखेंगे वी, अपने तमाम ग्रुप के लिए लिखेंगे वी, और किसी दूसरे इंसान के लिए लिखेंगे यू, ही, शी, दे, एट्सेट्रा. दे आर नॉमिनेटिव केसेस. फ़ाइली हालत. And me, us, you, him, her, them, they are adjective cases. They will use in object. In object place, I will tell you with detail. My, our, your, his, her, their. They are possessive pronoun. What is possessive pronoun? Possessive case. What is possessive case? Sorry. Possessive case is used to show position. Means it is used to show ownership. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उर्दू में इसको बताते हैं. वो अल्फाज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं. हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसकी रिपीटिशन को ख़त्म कर सकें. रिपीटिशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जैसे कि हम एक नाम लिखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल खालिद, स्नैक, असलम, कॉट, ये जो सारे ये जितने भी नाम है जिसको हम इतने सारे लिखेंगे तो उसकी जगह हम वी भी तो लिख सकते हैं. वी एक क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है. और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सब के लिए. जैसे कि हम बोलते हैं कि हम सब जाते हैं. हम जो है ये वी कहलाता है. ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन ये क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि ये रिपीटिशन को कम करता है. बहुत सारे नाम लेने से हम बहुत सारे नाम लेते हैं जैसे कि खालिद, तलहा, फरहान, फराज, एट्सेट्रा. तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. तो इस वजह से हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो I hope you understand that what is pronoun. Okay. तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं I go
H2OL. I go to school. Here I is subjective pronoun. Why it is subjective pronoun? Because you know that what is I is on the place of subject. So that's why it is called subjective pronoun. And what is objective pronoun? You know about objective pronoun? Me. I will make one example in that. ये आपको पता चल गया होगा कि आई ये जो है ये क्यों सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से ये सब्जेक्टिव केस है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस बताऊंगा। ये यहाँ पर सिर्फ आई की जगह क्या लगेगा, आई की जगह मी लगेगा। मी यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको एक जुमला बना के देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस्टरडे ही वॉज वर्किंग विद मी। मी यहाँ पर किस जगह पर आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यह यहाँ पर ही किस जगह पर आया है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस और नोमिनेटिव केस। I hope you understand that all, and we should go to possessive pronoun. What is possessive pronoun? Here you can see that it is my pen. ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये पेन किसका है, मेरा है। यहाँ पर माई क्या दिखा रहा है, यहाँ पर माई पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन किसी कहते हैं, मलकियत को कहते हैं। ये यहाँ पर मलकियत जाहिर करता है। तो ये यहाँ पर जब मलकियत जाहिर को करता है तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। तो आई होप you understand that, and we should go to other topic. We should go to verb, and we will talk about kinds of pronoun in other video. Okay. Verb की definition के पहले हम देखते हैं। Verb is a word that tells about the activity of person or thing. Verb वो चीज़ होता है जो किसी शख्स की एक्टिविटी किसे कहते हैं, किसी शख्स के जो काम वो करता है उस काम के बारे में बताता है, और किसी चीज़ के काम करने के बारे में। जैसे कि गाड़ी जाती है, गाड़ी क्या कर रहा है, गाड़ी जाने का अमल कर रहा है। ये जाना क्या हुआ, ये वर्ब है। तो यहाँ पर हम स्टेट ऑफ बीइंग भी लगा सकते हैं। नो, यहाँ पर नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग किसी और चीज़ के साथ आता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी शख्स या चीज़ के का जो काम वो करता है उसके बारे में बताता है। सॉरी अबाउट माई उर्दू, बिकॉज माई उर्दू इज़ लिटिल बिट वीक्स, दैट्स वाई आई कांट स्पीक इन उर्दू रियली वेल। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। राइट क्या है, एक अमल है लिखने का, और स्पीक भी बोलने का अमल है, और टेल बताना भी एक बोलने का अमल है, गो जाना भी बोलने का अमल है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग भी आ सकता है, जैसे कि मैं बीमार हूँ। बीमार क्या है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, हालत के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब हम वर्ब की काइंड्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको सबको डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वर्ब क्या है और जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है। तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। ही राइट्स अ लेटर। राइट्स यहाँ पर क्या है, अमल है। तो राइट्स एक वर्ब हुआ। जवेद टेल अस स्टोरी, टेल्स अस स्टोरी। तो टेल्स यहाँ पर क्यों है, ये भी टेंसेस के साथ ताल्लुक़ रखता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जवेद टेल्स अस अ स्टोरी। तो टेल्स अस यहाँ पर क्या है, टेल्स ओनली, ये यहाँ पर वर्ब है। अब आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। पहले उसकी डिफिनीशन को देखते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई और टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात देता है। जैसे कि हम बात करते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई बयान कर सकता है। ब्यूटीफुल, डार्क, ब्रेव, ट्रू, स्ट्रॉन्ग, अगली, एट्सेट्रा। फर्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए कि एडजेक्टिव के बाद नाउन ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर नाउन नहीं आया तो वो एडवर्ब हो सकता है। तो आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में इस तरह फ़र्क कर सकते हैं कि एडजेक्टिव पहले आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। यहाँ पर पहले एडजेक्टिव फिर नाउन।
एडजेक्टिव, नाउन। नाउन के बारे में तो आपको पता ही है, किसी चीज़ का नाम को नाउन कहते हैं। तो अब बात करेंगे, आई थिंक यू पीपल विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में, नो सॉरी, आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ आर्टिकल्स? आर्टिकल आर दोज वर्ड्स विच इज़ यूज्ड टू कैटेगराइज नाउन। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को आपको नाउन के बारे में ये मालूमात देता है कि ये कोई ख़ास चीज़ है या कोई खास या कोई आम चीज़ है। आर्टिकल की दो केस में, इंडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। ये इजी है, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड डिफिनिट आर्टिकल्स दी। व्हाट इज वेयर वी यूज़ दिस, जब कभी कोई चीज़ आम चीज़ हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आई बॉट अ बुक। बुक क्या है? ये एक आम चीज़ है, यहाँ पर ए आया, ठीक है। और दी किस चीज़ से किस तरह से मालूम होता है? जो खास हो, जैसे